Welcome you all. Myself Pransu Kumar Pathak, and this particular lecture I am going to start a new topic, that is molecular biology. Okay, so for understanding molecular biology, this is my first lecture in the field of molecular biology. So dear student, first of all I will give you some important facts. Okay, I will give you some important facts, and then today we will discuss DNA structure. Okay, so DNA structure is really very important to go details in molecular biology. Okay, so first of all we will go for some basic facts of molecular biology. So let's start. Okay, so first of all I am erasing all these things. So first you have to understand the different cell differentiation pattern. My dear friends, this is a particular cell, okay, having 2n number of chromosome present in every cell. Okay, so each and every cell have 2n number of chromosome in a normal set. In general, I am talking in general. Okay, so how a gene can regulated for their expression? Every cell is initially zygote is a single cell. You and I think everybody know. Okay, from zygote different type of cell and different type of pattern is obtained. Why? Because due to cell differentiation. Initially zygote is 2n having a single cell, but a whole individual is obtained from that zygote. So in human being, totipotent cell is only one, that is totipotency is only found in zygote. But in plants, each and every cell can give rise to new individual. So in case of plant, measure of the cells can be distinguished as a totipotent cell. So potency is another matter during the cell differentiation. So my dear friend, my basic funda is that each and every cell have the same genetic information. Okay, it means the genome is same, number of chromosome is same, but DNA is same, but the regulation of that gene is entirely different from each cell to every cell. So this is the gene expression, but it means molecular biology deal with the gene expression. If gene expression will change, then matter of everything will change, and this process lead to the cell differentiation. And आज जो भी आप देख रहे हो इस सेल डिफरेंशिएशन का क्या है, देन है। आप एक जाइगोट से सोचो जरा कि एक सिंगल जाइगोट है और इतनी सारी फिनोमेना आपके सामने कर देता है। ठीक है, एक जाइगोट जब सिंगल सेल का होता है तो वो टोटीपोटेंट होता है, वो कुछ भी बना सकता है, पूरा होल इंडिविजुअल बना सकता है। लेकिन जैसे जैसे सेल डिफ्रेंशिएट करता है, अब जरा सोचो, क्या नाक का सेल क्या कान बना सकता है? क्या कान का सेल नाक बना सकता है? नो, इट मीन्स ईच एंड आफ्टर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल इट कैन नॉट रिवर्ट बैक। ठीक है, टोटीपोटेंसी से पोटेंसी जब गायब होगी तो यू विल ऑलवेज हैव अ unique pattern of the cell and unique nature of cell, that is due to cell differentiation. Okay, so next my thought is to scientists on which you have to work on some model organism. So my dear friend, for discussion of model organism, first of all we have to understand what is model organism. Why model organism? model organism कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके रिसर्च को इजी कर दे, कोई एक ऐसा आपके पास सिस्टम हो जिसमें आप अपने रिसर्च को करें। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, आप आज तो बहुत सारे मॉडल ऑर्गेनिज्म है नाउ ए डेज इन 21st सेंचुरी। मॉडल ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल गया है, लेकिन हाँ अभी भी जो एक्सटेंसिवली जो यूज होता है वो इन्हीं 6 मॉडल ऑर्गेनिज्म को आज भी हम फोकस करते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो भी रिसर्च होता है वो कहाँ होता है? इकोलाई पे होता है। ठीक है, आज भी देखते हैं कि कोई भी बेसिक रिसर्च लैब में जाइएगा तो आपको कॉम सेल, कॉम्पिटेंट सेल है, वो क्या है? इकोलाई स्ट्रेन्स है। ईस्ट की बात करें तो सैक्रोमाइसिस सर्विसी पे क्या होता है? जो ईस्ट का मॉडल ऑर्गेनिज्म है वो सैक्रोमाइसिस सर्विसी है। फ्लावरिंग प्लांट जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें अरेबिडोप्सिस थैलियाना
एक बहुत ही बड़ा मॉडल ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट साइंस के स्टूडेंट्स अक्सर यूज करते हैं। और मैं भी, जो मेरा मॉडल ऑर्गेनिज्म है अभी, मैं भी अरबडोसिस थैलियाना पे ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज one of the most important model organism in the case of plant. And for nematode analysis, and nematode जैसे आपको देखना है, नर्वस सिस्टम की स्टडी करना है और किसी चीज़ की स्टडी करना है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सी एलिगेंस है, क्योंकि इसमें जो सेल की संख्या है वो क्या है, फाइनाइट है। अब ह्यूमन का एग्जांपल ले लो, ह्यूमन के ब्रेन को स्टडी करना चाहोगे तो यू हैव टू वेट अ लॉट। सो स्टडी हम उसी ऑर्गेनिज्म में करना चाहते हैं जो इजीली अवेलेबल हो, ईजी हो, जिसकी लाइफ साइकिल छोटी हो, जिस पे हम कई बार स्टडी कर सकें। एक ह्यूमन पे स्टडी आप कितने साल के लिए कर सकते हो? अगर ह्यूमन ब्रेन पे करोगे तो पता चला कि आपकी 50 साल लग गए एक ह्यूमन को जानने में, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड which model organism is important for your study. Okay, so my dear friends, choosing a model organism is really very important for your research. So बहुत सारे लोग फ्रूट फ्लाई पे काम करते हैं और आप देखते होंगे कि CSIR में ड्रोसोफिला मेलाग्रिस्टर के डेवलपमेंट पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। नॉट ओनली यही सारे मॉडल ऑर्गेनिज्म के रिसर्च अक्सर आपके क्वेश्चन में आते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। तो दिस मॉडल ऑर्गेनिज्म इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर ह्यूमन स्टडी, ह्यूमन पे अगर कोई स्टडी करना हो तो ह्यूमन के जो जीनोम है, मस्क्यूलस, जो उसे न्यूड माइस कहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। तो ह्यूमन स्टडी के लिए हम अक्सर क्या यूज़ करते हैं, मस्क्यूलस। सो दिस ऑल ऑर्गेनिज्म इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. So you can use E. coli, that is yeast, that is Arabidopsis thaliana, this is C. elegans, that is Drosophila melanogaster, and this is Musculus. So each and every, I think, researcher is using one of these organism for their performing research. So research field में कोई ना कोई यही मॉडल ऑर्गेनिज्म पे, आपके जो सीनियर्स हैं इसी सब किसी न किसी मॉडल ऑर्गेनिज्म पे प्रायः काम करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं मैं कहता कि सारे लोग इसी पे काम करते हैं, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द रिसर्च अल्टीमेटली गोज ऑन योर मॉडल ऑर्गेनिज्म. सो आपका मॉडल ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रिसर्च. और जब भी आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो मॉडल ऑर्गेनिज्म का चूज करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिसर्च. ओके, सो नाउ आई वांट टू डिस्कस some more things about human development and human evolution. So my dear friend, this is one important topic to understand. Okay, so my dear friends, so in this particular video I want to make a focus on Neanderthalis development. You know, जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन चला तो एक सीरीज ऑफ इवोल्यूशन में धीरे धीरे हम लोगों का विकास हुआ, ठीक है. और धीरे धीरे हम ह्यूमन, आज हम क्या हैं, होमो सैपियन हैं, लेकिन कभी हम होमो सैपियन नहीं थे. और हमारी जो ओरिजिन हुई है, खास करके जो हमारा ओरिजिन सेंटर है वो क्या है, अफ्रीका है. लेकिन धीरे धीरे निंडरथल कहाँ से मिले थे, जर्मनी से मिले थे. तो जरा सोचो, अफ्रीका कहाँ है, जर्मनी यूरोप में है, ठीक है. तो देखो ह्यूमन ने कहाँ से कहाँ अपने आप को पहुँचा दिया, ठीक है. तो ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और यह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्रक्स है. आप किसके लिए काम कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, ह्यूमन वेलफेयर चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ह्यूमन इवोल्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा कि हम कैसे आए हैं, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है, हम कैसे विकसित हुए, आज हम कहाँ हैं, कल कहाँ थे. तो दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स. ओके, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द निंदरथल डीएनए. निंदरथल के बाद ही तो होमो सैपियंस आए. तो होमो सैपियंस से पहले क्या थे, निंदरथल थे, ठीक है. तो निंदरथल के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. तो निंदरथल के बारे में जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, ये कहाँ से आए थे. तो नेंडर वैली से आए थे, जो कि कहाँ था, जर्मनी में था, ठीक है. और इनका जो भी है, आप अच्छे से ह्यूमन इवोल्यूशन को देखिएगा, आपके पास अगर टाइम हो तो ज़रूर आप जाइए और कुछ नहीं, 12th का एनसीईआरटी उठाइए और वहाँ पे पढ़िए, आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है. और यह अचानक से गायब हो गया, ठीक है, ऐसे डिसअपियर हो गया कि मिलना बंद हो गया, ठीक है. तो इनका आज तक नहीं पता चला कि कैसे ये गायब हुए, ठीक है.
तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो स्टोन्स थे, स्टोन एज यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, जिसे पाषाण काल कहते हैं हिंदी में। तो हम लोग पत्थरों से औजार बनाने लगे थे और हम लोग शिकार करना शुरू कर दिए थे। तो अचानक से पता नहीं कैसे निंडरथल गायब हो गए और होमो सैपियंस दिखने लगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नेचर में कैसे हमें रहना है, कैसे हमें जीना है। तो दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड। सो I am going to start molecular biology in really very fantastic way. So stay tuned, and first of all we will go from DNA structure. So thank you so much for watching the basics crux of molecular biology. आपको काम किसके लिए करना है, कैसे करना है, these all things matter a lot. ठीक है, तो thank you so much. We will meet in the next video that we will I will start from basic DNA structures. Okay, thank you so much for watching. Stay tuned. तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, बाय, टेक केयर।